दोस्तों देखिए, यह वो मंजर है जिसमें कि कहर डाल दिया यहाँ। आपने देखा होगा कि सुर्खियों में रहा ये जो इनर अखाड़ा बाजार है। ये देखिए कितना ज़्यादा यहाँ लैंडस्लाइड हुआ है और ये जो बिल्डिंग है ये पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। और यहाँ मेरे साथ सिंह साहब सत सत श्री श्री अकाल अकाल जी जी। साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ अच्छा सिंह साहब दसो ये ਤੁਹਾਡੀ बिल्डिंग हैगी? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा अच्छा ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। अच्छा ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ हाँ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ओहो अच्छा 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 ਉੱਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਈ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਆ, हाँ हाँ ਕਈ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੋਖਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। हाँ ਨਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੌਕਸ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। अच्छा अच्छा। ਜੇ ਕੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਆਂਦੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ नहीं होना ਸੀਗਾ। ये सिंह साहब बता रहे हैं कि जैसे ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन हुई है, अवैध भी थी और जायज भी थी, और वहाँ जो सीवरेज था वहाँ से पानी रस गया इस ज़मीन में, और इस कारण से यहाँ पर इतना जो लैंडस्लाइड हुआ है। और ये सर जी कब की बात है? ये अबाउट तीन तारीख की बात है। चार तारीख चार है ना, 4 हाँ जी, सितंबर की। 4 सितंबर की बात है। सुबह कितने बजे थी? सुबह 6 बजे की बात है। 6 बजे की हाँ बात जी। है। तो 6:20 की। अच्छा, तो आप अपने घर में होंगे? नहीं, मैं और मेरे मम्मी डैडी चंडीगढ़ में थे। हाँ। जो मेरा छोटा ब्रदर सीगा वो हाँ। घरे सीगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो की दसे उसने? ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਪਿਆ हाँ ਸੀਗਾ। हाँ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਂਟੀ ਹੈ, हाँ हाँ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, अच्छा ਉਹ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-7 ਜਣੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। अच्छा अच्छा, मतलब इस मकान में हुई डेथ? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ ਅਭਿਨਵ, हाँ हाँ। ਉਹ ਹਲੇ ਐਡਮਿਟ ਹੈ अच्छा अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਮਾ 'ਚ ਹੈ। ओहो। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਦਰ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਨੇ। अच्छा 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 अच्छा। ਔਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ हाँ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਦਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। अच्छा। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। हाँ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ अच्छा। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਹਾਂ। ਕਿਰਾਇਆ ਦੋਗੇ? हाँ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਗਾ? हाँ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂ। ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। हाँ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲ ਜੇ। अच्छा, देखिए सिंह साहब ने एक बहुत बरीक बात की है दोस्तों। इन्होंने बोला है कि इन मकानों में तो नुकसान हो गया है, ये बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लेकिन जो साथ वाले मकान हैं यहाँ से जो लाइन में बता रहे हैं, ये फ्रंट वाले भी खाली है, ये भी खाली है, फ्रंट आगे भी वाले खाली है। इतनी लोगों में दहशत होगी कि वो मतलब वो यहाँ से मकान खाली करके यहाँ से निकल गए और अब वापस आने की उनकी हिम्मत नहीं है। तो जब सरकार से इन्होंने गुहार लगाई तो बोले कुछ हम उनको आपको पैसा देते रहेंगे। तो जैसे सिंह साहब बता रहे हैं कि यह ऐसा चंडीगढ़ वाला तो नहीं है कि फ्लैट वाला काम है, यहाँ मकान है तो कितना मतलब पैसा देंगे। तो ये बोल रहे हैं कि सरकार से कि जल्दी से जल्दी कुछ इनकी बात सुनी जाए और एक कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए कि जिससे कि इनका विश्वास बढ़ जाए। और यहाँ पर मैं तो ये भी कहना चाहूंगा जे कल ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਰਵਾਂਗੇ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਡਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ? ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਸੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਸੋ ਰਿਹਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਨਾਲੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਰਾਂਡਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। अच्छा ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? अच्छा दोस्तों देखिए, ये जो सिंह साहब है इनकी उम्र मेरे को कम लग रही है। सर कितनी उम्र है? तो मेरी 21 है। मैं एडवोकेट हूँ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ओके ओके, तभी अच्छा अच्छा। ये देखिए 21, तभी मैं बोला कि बहुत तेज तराक आदमी है। देखिए यह 21 ईयर्स के हैं और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। और इन्होंने जो बात उठाई है कि कुछ ऐसा वैकल्पिक अरेंजमेंट होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी आपदा आ जाए, कोई ऐसे रेजिडेंशियल हाउसेज होने चाहिए
कि जिसमें कि लोगों को शिफ्ट किया जाए। अब ये बता रहे कि कुछ गुरुद्वारे में लोग फ्री रह रहे हैं, खाना भी उनका फ्री है, रहना भी है, परंतु कितने दिन तक चलेगा। तो इनकी जो बात उठाई है इस पर भी सरकार को गौर करना चाहिए कि क्योंकि अब दूध का जला छाछ को फूंक मारता है। इस प्रकार की अगर घटना यहाँ हुई और जो जिस प्रकार से यहाँ लैंडस्लाइड है और जैसे यहाँ की मिट्टी है, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि दोबारा यहाँ लैंडस्लाइड हो जाए, क्योंकि ना तो यहाँ डंगे लगेंगे और इतना बड़ा एरिया है। तो यहाँ तो मेरे हिसाब से तो इसको रिक्लेम करना, इसको दोबारा ठीक करना असंभव ही है। आओ जी सिंह साहब आगे चलिए, आ जाओ। आज हैं आगे जाऊं? फिफ्टिंग जो है उनसे ले। हाँ करते करते सर, करें पूरी करनी विक्टिम। नहीं नहीं आ जाओ, आ जाओ। एक मिनट सर, थोड़े सरदार जी ना कर लेंगे ना, करेंगे, आपकी आवाज पे चाहूंगा। ये देखिए सिंह साहब अब हमारे को ले जा रहे हैं इस स्थान पर, जो देखिए देखिए कितना खतरनाक मंजर है यहाँ। ये देखिए ध्वस्त हो गए मकान, बड़े बड़े आरसीसी स्ट्रक्चर ध्वस्त हैं। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ किस प्रकार से इस पहाड़ी को बचाया जाएगा, इसका अब बचाना तो नामुमकिन के एक लेमैन की हैसियत से, ऊपर इन्होंने मोटे पत्थर है, मेरे एक लेमैन की हैसियत से मेरे अनुसार तो यहाँ इसको ठीक करना, इसको सुरक्षित करना नामुमकिन है। देखिए यहाँ भी पूरी तरह मकान ध्वस्त हो गया। ये देखिए लोगों में डर का माहौल है। हाँ जी सर जी, आप बोलो, क्या बोल रहे थे आप? ये बता रहे जिद्दां तुसीं देख सकते हो ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 2 3 4 ਘਰ ਟੋਟਲੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਵੇਟ ਥੋੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ किसका मन करता है कि इतने इतने बड़े घर बना के लोग दूजे दे घरे रहन जाके। तो सरकार को ये चीज सोचनी चाहिए है। ये बड़ी अच्छी बात उठा रहे। देखो सरदार जी एडवोकेट हैं, पहले तो मैं सोचा कि एक साधारण है, परंतु तभी अधिवक्ता हैं ये पंजाब में, और बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने की हैं। और इन्होंने ये किया है कि कल को दूसरी प्रकार की आपदाएं हो जाए तो कोई एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन होना चाहिए। और पहले तो है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि किस प्रकार से जैसे सीवरेज वाले इनको नोटिस दिया जाए कि इसको ठीक करें या वहाँ से लीकेज वगैरह ना हो। तो क्योंकि जो पहाड़ है इतना कच्चा है कि इसको अगर बारिश 2-3 दिन और होगी तो ये यहाँ से फिर गिरेगा। क्यों सिंह साहब? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये हर बरसात का हाल है। अब हर बरसात हमें डर लगा रहता है कहीं ऊपर से फिर ना आ जाए। जी जी जी। अब अगर मान लो सब कुछ ठीक भी रहता है तो की गारंटी है कि फेयर नहीं आ सकता जब तक प्रिक्योर नहीं करेंगे। जी जी जी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆਰਸੀਸੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵਾਲ ਲਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੱਕਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਮਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਮੂ कश्मीर सरकार वालों। अच्छा, तो सिंह साहब जैसे यहाँ मेरे जैसे नॉलेज है, मुख्यमंत्री साहब भी आए थे, दूसरे आला अधिकारी भी आए थे, शायद जयराम जी भी आए होंगे, तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने, कुछ क्या बोल के गए? उन्होंने तो जी देखो यही कहा वा कि असी छेती तो छेती इत्थे सॉल्यूशन करने दी ट्राई करन, पर गल्ला ही करते ने, करते कुछ है नहीं। ये बात ठीक है, कथनी और करनी में बहुत फर्क है, जैसे सिंह साहब बता रहे हैं। तो मैं भी सरकार से, हिमाचल सरकार से, जिला प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इन लोगों की जो समस्या, इनमें जो एक डर का माहौल पैदा हो गया है, उसको सबसे प्राथमिकता के आधार पर इनका निवारण किया जाए। जैसे इन्होंने सिंह साहब ने बताया कि जो यहाँ घर वाले हैं, इन्होंने घर छोड़ के चले गए हैं, डर का माहौल है, अब कहाँ कोई रिश्तेदार के घर दर दर भटक रहे हैं, तो कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए, कोई बुलाया जाए जो मिट्टी टेस्ट करते हैं कि उनसे देखे जाए भी कितनी स्ट्रेंथ है, कैसे इसका वो किया जा सकता। IIT मंडी से कोई बुलाए जाए, इंजीनियर्स द्वारा बुलाए जाए, तो किस प्रकार से यहाँ एक परमानेंट सोल्यूशन हो जाए, ताकि
बरसातों के दिन में, अभी तो जैसे सितंबर है, 15 सितंबर तक बारिशें रहती हैं, तो कुछ नहीं कह सकते, बादल है और भी बारिश हो सकती है। तो कोई ऐसा प्रावधान निकल जाए कि जो इन लोगों का जो कॉन्फिडेंस इसमें लूज़ कर गए हैं वो बरकरार हो जाए। तो देखिए दोस्तों, अब मैं नीचे विक्टिम्स भी हैं कुछ, उनसे भी बात करना। आओ आओ सरदार भाई, कौन कौन से विक्टिम्स? ये सरदार साहब आए हैं, कौन है देखिए? ਇਹ ਮਾਮਾ जी ने जी। अच्छा, इन्हों का भी होया नुकसान? हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। और जी मामा जी की हाल है? पहचाने सानू? अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ भी बोलते नुकसान होया है मामा जी? हैं? तो बड़ी दुख वाली बात है कि देखो, अब ये है कि चलो अब क्या कर सकते हैं, बड़ी दुख वाली बात है। देखिए हैं? ये ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸਿਆ ये नहीं है जी, इसके इधर- बैक साइड अच्छा, में इधर सारा इधर ही बैक पानी से सीधा। है। ये जो द्वारे फट के लेंटर अंदर चलते हाँ, हैं, हाँ। पानी जो ये वाला सारा ही है। ओहो, ये देखिए, इधर से नहीं नजर आता, वैसे ये अंदर से प्रथम के देखिए। ताला खोल ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ अच्छा, ਨੇ। फादर साहब सत श्रीकाल जी, आ गए तो प्रथम के पिता, आ जाओ मैं मामा जी, ताला आ जाओ, खुलवाता पांडा जी आ जाओ। हूँ, ताला खुलवाता हूँ आपसे। अच्छा, तो ये देखिए, इनका प्रथम के मामा जी का भी नुकसान हुआ है। अच्छा, ये बिल्डिंग है कि ਤੁਹਾਡੀ? सर जी देखो, मनु भी डर लगता पे जाते, ये जिदा प्रथम ने बोले ना कि डर है साडे च, मनु भी डर लगता पे। आ जाओ, वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतेह। चलो आओ। चाबी मंगानी पड़नी इसकी, हैं? लॉक है। अच्छा देखिए दोस्तों, जो तो प्रत्यक्ष है वो तो चीज़ दिख रही है, और जो अप्रत्यक्ष है उसको कोई नहीं देख रहा। भाई देखिए, सरदार साहब का नुकसान हुआ है और इन्होंने ताड़ा लगाया हुआ है। ये बोल रहे हैं कि अंदर से आके देखिए, सारे जैसे इन्होंने बताया प्रथम जी ने, ये सारे जो भी मकान है खाली हैं, घबराहट का वातावरण है यहाँ, और सरकार को इस बारे में सोचना है। हैं? रात को खौफ है सबका। हाँ, रात को खौफ है सिंह साहब। देखिए, मैंने तो हुण अभी खौफ है, अब चाबी हुए खौफ है। कोई नहीं, क्योंकि जब एक बार खौफ हो जाता है ना, लगता है कि किस में बिल्डिंग हिली हुई है, इतना मलबा आया हुआ है, तो एक लाजमी है, क्योंकि हम इंसान हैं। ऐसे हिली थी, ऐसे अच्छा जी, जब जेसीबी लगी, अच्छा, ये बता रहे हैं कि जैसे जब जेसीबी लगी तो बिल्डिंगें जैसे भूकंप आता है वैसे हिली थी ये बिल्डिंगें। ये देखिए, तो सर जी ये कितने दिन ऑपरेशन चले? ये जोड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कितने? 3 दिन चला। हाँ जी, 3 दिन चला। एनडीआरएफ की पूरी टीम्स NDRF आई हुई थी। आईडीएफ, अच्छा, हाँ एसबीपी, हाँ, सारी टीमें मौजूद थी, होमगार्ड, पुलिस। अच्छा, तो अगर एक्सपर्ट ना होते तो बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि एनडीआरएफ वगैरह तो इसी के लिए ट्रेन किए जाते हैं। इनकी वजह तो यहाँ मशीनें आ गई थी इनकी संकरी कॉलोनी में। यहाँ पर टोटल 2 बैचेज आए थे इनके। तो ये बाहर से आए थे कि यहीं? पठानकोट से। अच्छा, पठानकोट से आए थे। अच्छा, 3 दिन लगे इसका, 72 घंटे का काम हुआ यहाँ। अच्छा, तो सर बड़ी दुख की बात है। अब मेरे को ये बताइएगा हाँ कि जी, यहाँ जान का कितना नुकसान है? यहाँ पर जान का 7 कैजुअलिटी इधर हुई है जी, 2 पास में हुई है, 9 कैजुअलिटी टोटल है। 2 Total पॉइंट 9। लाइन सेटिंग, 2.8, अच्छा, 3 days कंटिन्यू 3 लाइन सेटिंग। ओके। हाँ जी, एक यहाँ पे हुई है, हाँ। एक यहाँ पे हुई है, एक आगे हुई है। 3 लैंड स्लाइडिंग हुई है। 3 लैंडस्लाइड हुई है। हम तो दोस्तों, कंटिन्यू हम तो एक ही जगह पर हैं, तो थोड़ा सा आगे नहीं जा पा रहे। तो ये बता रहे हैं सिंह साहब कि 7 एक जगह कैजुअलिटीज हुई है, हाँ, 2 एक जगह, 2 एकड़। 2 एक जगह और एक जगह हाँ जी, हैं? 7 एक 2 एक। 7 एक। तो दोस्तों, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 9 यहाँ जो जाने और थी। एक जो है वो सीरियस है, अभी भी सीरियस चला हुआ है। हाँ, तो एक जो 9 जाने गई हैं, बड़ी दुख की बात है, और एक बता रहे हैं कि सीरियस है। तो मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से उन सब को संवेदनाएं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और जो अभी उपचाराधीन है, जिसका इलाज चला हो, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो दोस्तों देखिए, अब हम तो अपनी सहानुभूति कर सकते हैं, और अब आगे के लिए क्या क्या बचाव कार्य किए जा सकते हैं, प्रिकॉशंस की जा सकती हैं, उसके बारे में एक अब अध्ययन करूंगा। और अपने जो मैंने यहाँ मौके पर देखा है, धरातल पर देखा, उसके आधार पर मैं एक और ब्लॉग जैसा बनाऊंगा कि जिसमें
कि ये प्राकृतिक घटनाएं क्यों हो रही हैं, इनका किस प्रकार से हमारे को सामना करना है, क्या क्या लोगों को चेतावनी देनी है, तो ये चीज़ें सारी करेंगे। हाँ सर। तो सिंह साहब जी ਤੁਹਾਡਾ बड़ा धन्यवाद है ना जी तो धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ भी जी है ना ठीक है। और सारा हो गया, चलो फिर बाकी मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा तो उस फिर और करके है ना, आपका भी कर दिया तो एक अलग सा मैं बनाऊंगा, तो उसमें सारा जो भी आप लोगों ने किया थोड़ा विस्तार से और कर दूंगा, ताकि सरकार को भी जो ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮਲਬਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਲੀਨ ਕਰਾ ਕੇ ਹਾਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਰਸੀਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੱਖਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਆਪਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਹੋਣ। हाँ तो दोस्तों देखिए, जैसे सेंटर से भी जैसे हमने पढ़ा है कि 1500 करोड़ रुपए आया है, तो अब इन चीज़ों के लिए जैसे अब यहाँ डंगे लगने हैं, आरसीसी वगैरह लगने, तो उस पर लगा दिया जाए, ताकि यहाँ जो लोगों का एक डर का माहौल है आगे ना रहे। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर, धन्यवाद। धन्यवाद। ओके। ये देखिए, यह बिल्डिंग्स हैं, शॉप्स हैं, और ऊपर से देखिए सारा का सारा पहाड़ गिर गया है, दर गया। देखिए कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें आ गई हैं दोस्तों, देखिए। अब अगर यहाँ छेड़खानी करेंगे ये इससे ज़्यादा, तो यह जो चट्टानें ऊपर फंसी हैं यह भी नीचे गिर सकती हैं और जान माल को नुकसान हो सकता है। देखिए दोस्तों, इस समय मैं भेखली जा रहा हूँ, और मैं ये नहीं कह सकता कि रास्ता वहाँ का ठीक होगा नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। तो यह भेखली रास्ते का एक दृश्य मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ भी देखिए कितना मलबा आया हुआ है, पूरा का पूरा पहाड़ यहाँ नीचे आ गया है। देखिए और ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ दिन पहले यह सड़क रिस्टोर की है इन्होंने। दोस्तों देखिए क्या दुर्गति बना दी है नेचर ने, कुदरत ने, जो ये कहर ढाया है। देखिए यहाँ से नीचे तक देखिए लैंडस्लाइड हुआ है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे गिरी हुई हैं। जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, और अभी कोशिश की जा रही है कि उसको किसी न किसी तरीके से बहाल किया जाए। तो अभी मैंने जहाँ से डाइवर्जन ली है नेशनल हाईवे से, कोई 1 किलोमीटर भी नहीं आया हूँ ऊपर को, और देखिए दो बड़े बड़े मैंने आपको लैंडस्लाइड दिखा दी हैं, और नीचे का देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य। यह एक और भूस्खलन, सारा का सारा पहाड़ यहाँ नीचे उतर गया है, स्लाइड हो गया। देखिए पेड़ भी आ गए हैं, देखिए कितने पेड़ यहाँ चील के, ये देखिए जड़ों से उखड़ के नीचे गिरे हैं। यह तीसरा मैं आपको बड़ा स्लाइड दिखा रहा हूँ। रास्ते में और छोटे स्लाइड थे जो मैं नहीं दिखाऊंगा आपको। तो देखिए अभी मैंने 5-6 किलोमीटर का सफ़र तय किया है भेखली जाते हुए, और यह तीसरा बड़ा स्लाइड मैंने दिखाया आपको, ये देखिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने दिन यहाँ रास्ता बंद रहा होगा। भेखली माता के मंदिर जाते हुए कुल्लू शहर का एक अलौकिक दृश्य, बहुत ही खूबसूरत। ग्राउंड देख सकते हैं आप, नदी ब्यास, पुल,
सुंदर दृश्य। दोस्तों देखिए, मैं अब भेखली माता के मंदिर पहुंच गया हूं। अब यहां से मैंने पौड़ियाँ चढ़नी आरम्भ कर दी हैं। देखिए मंदिर के आप झंडे देख सकते हैं, ये देखिए। और आज दोस्तों मैंने वो मंजर देखा जिससे कि मेरा दिल जो है बहुत ही आघात हुआ, बहुत दर्द हुआ। मैं उस जगह गया था जहाँ पर भूस्खलन हुआ था, इनर खाड़ा में, और उन मकानों को देखा जो बिल्कुल ध्वस्त हो चुके थे, बिल्कुल जिसको बोलते रूइंस में थे, खंडर हो चुके थे। और उन घरों में सोए हुए, सुबह 6-7 शायद घटना 6 बजे की थी जब भूस्खलन हुआ था। तो नींद में ही हमारे भाई 7 + 2 9 जो निर्दोष लोग थे, पुण्य आत्माएं थी, उनके प्राण चले गए। तो मेरे लिए यह, जब मैं वहाँ यह रिपोर्टिंग कर रहा था, ब्लॉगिंग कर रहा था, तो एक बहुत ही दर्दनाक दृश्य था। कुछ लोगों से मैंने बात भी की, तो वह दृश्य देखने के बाद फिर मैंने यह उचित समझा कि माता भेखली के दरबार में जाऊं और जो पुण्य आत्माएं हैं जो उस हादसे में जिनका जीवन चला गया, उनके लिए दुआ मांगूं, उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करूं। तो यही मेरा आज भेखली आने का दोस्तों अभिप्राय है। इसमें शाम के लगभग 4:30 बज चुके हैं। तो यहाँ आने का कोई औचित्य नहीं था कि इतनी शाम को मैं आता, लेकिन जब मैंने वहाँ मौके पर था, तभी मैंने यह निश्चय कर लिया कि मैं माता भेखली के दरबार जाऊंगा और मृतकों की आत्माओं के लिए, उनकी शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। दोस्तों, बहुत दुख के साथ मैं अब माता के चरणों में अपना शीश झुकाने जा रहा हूं और प्रार्थना करूंगा। दोस्तों, अब मैं मंदिर परिसर के बहुत ही नज़दीक हूं और यहाँ मुझे एक यहाँ स्थानीय निवासी मिल गए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश। अच्छा, ओम प्रकाश जी, मेरे को पहले ये बताइए आप, ये देखिए, ये जो मंदिर है ना छोटा सा, ये छोटा सा मंदिर, ये क्या है? ये थान देवता बोलते हैं उसको, जमीनी देवता होता है। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, थान देवता है, जमीनी देवता है। और यहाँ मैं पहले एक मिनट जूते खोल लेता हूँ, उठा रहा हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ जूते खोल रहा हूँ और ओम प्रकाश जी से बात करेंगे। यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और ये हमारे को कुछ जो ब्रीक बातें हैं वो भी बताएं। आइए सर। तो सर, क्या मेरे दर्शकों को आप बता सकते हैं कि कितना साल पुराना मंदिर है भेखली माता का? ये भेखली मंदिर ये 1600 साल पुराना है। ये जैसे बता रहे हैं ओम प्रकाश जी, 1600 साल पुराना मंदिर है। देखिए दोस्तों, बड़ा परिसर है, साफ सुथरा है। सर, यहाँ से जाना हमने कहीं? मेन गेट। अच्छा, तो ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं कि इस इधर से चलिए, मेन गेट से आप। तो बहुत मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इसमें लगभग 4:30 बजे का समय है। तो ओम प्रकाश जी मेरे को मिल गए, क्योंकि आजकल लोग व्यस्त हैं, सेब की तुड़ाई शुरू हो रही है और ये मेरे को मिल गए। तो देखिए, एक मिनट सर, मैं यहाँ से अपने दर्शकों को मेन गेट दिखाता मंदिर का। दोस्तों देखिए, कितना भव्य यहाँ मंदिर का गेट है। देखिए, ओहो दोस्तों, बहुत ही सुंदर गेट है। देखिए, ये मैंने जूम किया है, ये भेखली माता का गेट है। तो जैसे ओम प्रकाश जी ने बताया कि 1600 साल पुराना ये मंदिर है। आइए सर। तो इसमें पुजारी जी होंगे अंदर कि नहीं होंगे? नहीं, पुजारी जी नहीं होंगे। इसमें पुजारी जी नहीं होंगे, तो हम बाहर से ही मत्था टेकेंगे माता के चरणों में। तो जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था आपको कि मेरा जो यहाँ आने का मकसद है वो उन आत्माओं की शांति के लिए है जो यहाँ लैंडस्लाइड के दौरान जिन लोगों के प्राण चले गए थे। आइए सर, ओम प्रकाश जी अंदर। ये देखो ओम प्रकाश जी मुझे मंदिर के अंदर ले जा रहे हैं। आइए चलिए अंदर। ओम श्री गणेश है ना, गणेश जी का किया। और अब मैं मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। जय माता की। और ये देखिए, मंदिर इसमें बंद है
लेकिन मैंने हाजिरी दे दी है मंदिर में। माता रानी मेरी हाजिरी दर्ज कीजिए। तो यहाँ माता रानी के चरणों में मैंने हाजिरी दर्ज दे दी है और उन सभी आत्माओं को शांति के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो कि ये जो भूस्खलन हुआ था, सोए सोए जिनके प्राण चले गए थे, तो उनकी आत्मा को माता रानी शांति दे। बहुत ही एक दर्दनाक मंजर था। जब मैं वहाँ ब्लॉगिंग कर रहा था तो मेरे आंसू निकल रहे थे, बहुत भावुक था मैं। और इस प्रकार की जो आपदाएं हैं, ये माता रानी इनसे बचाइए। हमारे को ये जो हम लोग हैं गलती करते हैं, लेकिन आपका भी जो बड़ा, आप तो भगवान हैं, माफ़ कीजिए गलतियों को और हर संकट से बचाइए। और देश का, प्रदेश का, मानव जाति का कल्याण हो, सबको शांति दे, सद्बुद्धि दे। तो मैं आज यही प्रार्थना करने आया हूँ। महारानी जी, मेरा आने का सुबह तो कोई विचार नहीं था। जब मैं वहाँ उस जगह पर था तो मेरे मन में विचार आया कि आपके दरबार में आऊँ और आपके दर्शन करूँ। चलो दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन मेरी हाजिरी आपने दर्ज कर दी है। तो उन सभी पुण्य आत्माओं को शांति दे। जय माता की, जय माता की, जय माता भेखनी माता जी। बोलो सांचे दरबार की जय, सांचे दरबार की। बोलो ओम प्रकाश जी सांचे दरबार की जय। जय माता की, जय माता भेखनी की। जय माता की। सबकी रक्षा करे माता, सबकी रक्षा करे। चलो। माता के चरणों पर मैंने माथा टेक लिया है। और ये देखिए मंदिर बाहर से बंद था, इसमें किवाड़ बंद थे, तो मैंने बाहर से अपनी हाजिरी दर्ज करा दी है। ओम प्रकाश जी मेरे साथ बने हुए हैं। अच्छा, तो ओम प्रकाश जी ये बताइए मुझे कि जैसे दशहरा फेस्टिवल लगता है ना यहाँ नीचे, और रघुनाथ जी का रथ जब खींचना शुरू करते हैं, तो मुझे ऐसी जानकारी है कि माता भेखड़ी इशारा करती है। तो सर इसके बारे में कुछ बताइए, क्या है, कहाँ से इशारा होता है? माता यहाँ निकली है ना, असोज में बोलते हैं, अक्टूबर महीने में। हाँ। जब दशहरा शुरू होता है, हाँ। उस टाइम हमारा यहाँ मेला होता है। मेले माता निकलता है, रथ निकलता है। हाँ। जिस दिन दशहरा शुरू होगा यहाँ लास्ट होगा उस दिन। अच्छा। मेला लास्ट। फिर माता यहाँ से निकलती है, परिक्रमा में निकलती है। माता इधर होके ना, गाँव होके, गाँव नीचे होके, फिर सामने है ये मकान है सामने। अच्छा। यहाँ जगह सीधा दिखाई देता नीचे। अच्छा। ग्राउंड जहाँ दशहरा शुरू होता है। फिर वहाँ से माता इशारा करती है ना। झंडे के माध्यम से होता है इशारा? झंडे भी होता है, रथ भी होता है, झंडे भी होता है। अच्छा। सिंगे हर एक चीज होता है। गाजा बाजा भी होता है? गाजा पूरा होता है, पूरा बाजा गाजे से जाता है रथ। बस जिस टाइम वो झंडा जुड़े या इशारा माता करती है ना, ऐसा इशारा गूर होता है माता का। वो ऐसा करेगा, रथ पकड़ा होता है। बस वैसे ही नीचे से फिर अपना वो कार्यक्रम शुरू। ये देखिए दोस्तों, ओम प्रकाश जी ने देखो कितने स्पष्ट शब्दों में बताया, बड़े अच्छी तरह की माता परिक्रमा पर होती है, निकलती है। और जिस दिन दशहरा शुरू होता है तो वह उस स्थान पर होती है जहाँ से ढालपुर ग्राउंड, रथ ग्राउंड बिल्कुल दिखता है सामने से। और वहाँ से झंडे के माध्यम से, गाजे बाजे के माध्यम से माता इशारा करती है। और फिर वो रथ यात्रा शुरू होती है। रथ मतलब कि खींचते हैं लोग, जो श्रद्धालु हैं हजारों की संख्या में उस रथ को खींचते हैं और दशहरा शुरू हो जाता है विधिवत। और अच्छा ओम प्रकाश जी, जो दशहरे में जैसे कभी 360 देवी देवता आते हैं, कभी कम आते हैं, तो माता भेखड़ी भी उसमें शरीक जी? माता हमारा इलाके का कोई देवी देवता दशहरे में नहीं जाते। अच्छा। वो यहीं से उसकी रघुनाथ जी की चाकरी यहीं से करते हैं। तो ये बता रहे कि माता जो भेखली भी और यहाँ के जो इलाके के कोई भी देवी देवता नहीं जाते वहाँ, और माता जो रघुनाथ जी की चाकरी जो है यहीं से करते हैं। और तो ओम प्रकाश जी ने देखो कितनी अच्छी बात बताई मुझे और मेरे चैनल वालों को कि क्या महत्व है, किस प्रकार से रथ यात्रा शुरू होती है, कहाँ से इशारा होता है। पहले तो मैं सोचता था कि शायद मंदिर से इशारा होता है, लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ से कितनी दूर, बस 200-300 मीटर दूर होना। हाँ इतना ही है। माता के चरण है ना यहाँ, माता के चरण भी है, बस उसके साथ से। हाँ, कोई बता रहे हैं यहाँ से, जो मैं मंदिर में खड़ा हूँ वहाँ से 200-300
मीटर की दूरी पर है, और एक घर है वहाँ। माता के चरण गांव तो है ना, माता के चरण है वहाँ ना, वहाँ माता के चरण है, उसके पिछली साइड से होता है, और उसके पिछली साइड से इशारा। वहाँ से इशारा होता है और हमारा दशहरा शुरू हो जाता है। तो ओम प्रकाश जी, मैं अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे से बातचीत की। माता रानी सब पर आशीर्वाद है। देखिए, जैसे मैंने अंदर भी माता से प्रार्थना की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं उस स्थल पर गया था, आपने भी सुना होगा कि जहाँ 9 लोगों की मृत्यु हुई है इनर अखाड़े में। तो वहाँ जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो बड़ा भावुक हुआ, मेरे आंसू भी निकल गए। अब देखो कि जो सोए हुए आदमी पर मलबा आ गया, और बड़ी मुश्किल से 3 दिन उस ऑपरेशन को लगे, जिसमें से उनको डेड बॉडीज को निकाला गया। तो बड़ा एक भावुक मेरे लिए पल था। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि माता के चरणों में जाऊं, उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करूं कि शांति मिले। तो इसलिए मैं आया हूं और आपके दर्शन हो गए। नमस्ते सर, धन्यवाद।